Hello readers, welcome to Knowledge Source with Priyanka. Today's topic is A Psalm of Life, which was written by Henry Wadsworth Longfellow. Let's know some introductory fact about the poet. The lifespan of Henry Wadsworth Longfellow was from 1807 to 1882. He was an American poet and educator. In 1884, he the first citizen of the United States to be honored in Poets' Corner of Westminster Abbey in London, England. Poets' Corner of Westminster Abbey ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ପଏଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଠି ସମାଧି ବନାଯାଏ। ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ସମାଧି ମାନେ ପଏଟ୍ସ କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଆବେରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସବୁ ପଏଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ବନାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମାଧିରେ ସବୁ ଏପିଗ୍ରାଫ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ମାନେ କିଛିଟା ଲାଇନ୍ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏମ୍ଟିର ଟାଇଟେଲର ମିନିଂ ଜାଣିବା। ସାମ୍ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ସଙ୍ଗ୍। ସୋ ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମିନ୍ସ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ। ଫର୍ମ ଅଫ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଏଟ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏ ପଏମ୍ ବିଷୟରେ ଲେଟ୍ସ ନୋ। ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପଏମ୍ଟି ସବୁଠାରୁ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ପଏମ୍ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପଏଟ୍ ଗ୍ଲୋରିଫାଏଜ୍ ଦ ଲାଇଫ୍, ମାନେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ପଏଟ୍ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। The speaker believes that life is a solemn virtue and that the only way to live it is by making it worthwhile, by becoming a good influence for the future generations, and suggests that as long as one lives, one must progress further than before and provide impetus for others to create their own footprints. ତ କବି ଏଠାରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଜୀବନଟା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଏହା ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ଅଟେ, ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଗିଫ୍ଟ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାନେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା, ଏହାକୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏହାକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇଦେବା ଯେ ଆମର ଜୀବନର ପ୍ରଭାବ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କବି ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରା ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡକୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କର ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ସ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ମାନେ ନିଜର ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ, ନିଜର ପଦଚିହ୍ନକୁ, ନିଜର ଗୌରବକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଅ ଯେ ଯେପରି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ। This poem belongs to the genre of poetry called Carpe Diem poems. Carpe Diem popularly translated as seize the day in a phrase from a Latin poem by Horace. This poem inspires us to make the most of time. Carpe Diem philosophy ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି one must live the life to its fullest extent. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଆଜି ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନ ଖୋଲା ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ମାନେ ଆଜିର ଦିନକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଏନ୍ଜୟ ଏଠାରେ ଏହି ଅର୍ଥରେ କବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇ, ମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ପୁରା ଖୁସିରେ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପଏମ୍ଟା ଆମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଟାଇମ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ବିଷୟରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପଏମ୍ଟିରେ। ଲେଟ୍ସ ରିଡ୍ ଦ ପଏମ୍। ଏହି ପଏମ୍ଟିର ଗୋଟେ ସବଟାଇଟେଲ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ସେଡ୍ ଟୁ ଦ ସାମିଷ୍ଟ। ଏହି ରିଲିଜିୟସ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଏହି ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକର ହୃଦୟ କ'ଣ କହିଥାଏ। Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem. ଏହି ପଏମ୍ଟିରେ 9ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଅଛି, ପ୍ରତି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ 4 ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଏହାର ରାଇମ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ଏ ବି। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍
फर्स्ट लाइन रो लास्ट वर्ड अच्छी नंबर्स, देन सेकेंड ड्रीम, देन थर्ड लाइन ले स्लम्बर्स, देन फोर्थ लाइन ले सीम। तो नंबर सहित स्लम्बर राइमिंग होची, ड्रीम सहित सीम राइमिंग होची। तो नंबर्स रो राइमिंग वर्ड होची स्लम्बर्स, ड्रीम रो राइमिंग वर्ड सीम। तेणु ए बी होची यार राइम स्कीम। मर्नफुल मीन्स सरोफुल। जड़े युवकर हृदय कही थाए कष्ट देउथिबा भली गीत मो आगरे गाओ नहीं। अर्थात ये जंत्रणादायक गीत गुड़िक मो आगरे कह नहीं जे लाइफटा किछि नुहे, लाइफ गोटे शून्य स्वप्न अटे। यही लोक मैंने सब बेले कही था लाइफटा मीनिंगलेस, लाइफ भैल्यूलेस, आज मरीगले काली की दी दिन, एमती लोक मैंने सब कही था। एहीपरि लोक मानक मतरे जीवनर मूल्य किछि न थाए, जीवनटा मीनिंगलेस होता है, एम्प्टी ड्रीम होता है। तो यही कथा कहूथिबा लोक मानकर जीवन रे से माने सुई पड़ी थांती। स्लम्बर मीन्स इन लाइट स्लीप, नॉट इन डीप स्लीप। से माने निज जीवन रे एक्टिव न थांती एवं जीवन को से माने जेउ दृष्टिकोण देखि थांती प्रकृत रे जीवन से दृष्टिकोण होई न थाए। मनुष्यर जीवन सेते मूल्यहीन नुहे जो भली भाव में ये सामिस्ट मैंने कही थांती। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art to dust thou returnest was not spoken of the soul। सेकेंड स्टांजा रे पोएट कहउछंती लाइफ इज रियल, जीवनटा वास्तव अटे, यह कौन स्वप्न नुहे। जीवन रे सब किछि वास्तव रे ही घटी थाए, जहाँ घटी थाए एपरि नुहे कि जे स्वप्न रे जदि पड़ी जाती ताहले आमर कौन क्षत हुए ना, किंतु प्रकृत रे वास्तव रे जदि आम पड़ी जाती ताहले आमर क्षति होता है, देहरे शरीर रे क्षत होता है। तो सेटा कहते लाइफटा रियल हुए अटे, ये सब किछि घटे, वास्तव रे घटे। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ रे किछि पर्पज रही, प्रत्येक व्यक्तिर जीवन रे किछि पर्पज रही, लाइफटा पर्पजफुल अटे। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एवं मशाणी भूमि जीवनर शेष लक्ष्य नुहे, अर्थात मनुष्य केवल मरिबा पई जन्म हुई नहीं। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्न्स, यार अर्थ होउची माटीर शरीर माटी रे मिसीजिव। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह मनुष्यर आत्मा पई कुआ जाय नहीं, मनुष्यर शरीर माटी रे मिसी जाय थाए। मनुष्यर पार्थिव शरीर माटी रे मिसी थाए किंतु मनुष्यर आत्मा नुहे। यही जो कथाटी माटीर शरीर माटी रे मिसीजिव, यह पार्थिव शरीर पई कुआ जायछि, आत्मा पई कुआ जाय नहीं। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सरो इज आवर डेस्टाइन एंड आवर वे। तो एठारे कवि गुटे इटर्नाल सत्य कथा कहते जे मनुष्य जीवनटा केवल एन्जॉयमेंट पाई नुहे, केवल उपभोग पाई नुहे, एवं मनुष्य जीवन मध्य केवल दुख पाई नुहे, यह दुख सुखर मिश्रण अटे। तमे माने याको अनुभव करिथिबो जे जणे जेते बड़ मनीष हो किंबा जेते छोट मनीष हो, समस्तक जीवन दुख सुखर मिश्रण अटे। जीवन को केवल उपभोग करबा एवं जीवन रे केवल दुख प्रकाश करबा यह आमर उद्देश्य नुहे, आम जीवनर उद्देश्य नुहे। आम जीवनटा र मीनिंग एया नुहे जे आमे सब बेले दुख प्रकाश करबा किंबा सब बेले खुशी रे रहिबा। बट टू एक्ट दैट इज टुमोरो फाइंड्स अस फर्दर दैन टुडे। किंतु जीवन कौन पाई ना कर्म करबा पाई। किपरि कर्म करबा जे आमे एपरि कर्म करबा जहाँकि आमर कालीर कर्मटा आजिर कर्म ठारू आहुरी भल हबो। अर्थात दिन को दिन आमे आमर काम को प्रोग्रेस कराइबा जहाँकि तार पूर्व दिन ठारू कामटी आहुरी भल हेबो। That is long and time is fleeting and our hearts though stout and brave still like muffled drums are beating funeral marches to the grave। एई स्टांजा रे कवि कहउछंती जे प्रत्येक मनुष्य तांकर जीवन रे बहुत किछि करबा पई स्वप्न रखी थाए, माने तार जो लिस्टटा थाए, तार एम लिस्ट, तार गोल लिस्ट, माने ताकू कौन कौन सब करबा को हबो, से लिस्टटा बड़ थाए किंतु समय कौन होई थाए अतिबाहित पानी भरी बही चली थाए। अर्थात समय द्रुत बेगरे
गति करिथाए। आमर जीवन मनुष्य जीवन माने शॉर्ट पीरियड पाई अटे। एटा परमानेंट नुहे, टेम्पोरारी। ऑल मेन आर मॉर्टल। सबू मनुष्य मरणशील, तो दिन ना दिन मरवाकू पड़िबो। तो जड़े जितेबाला जन्म होता है तार जीवनर समय सेबेठू आरंभ हुई हुई चली थाए एवं जीवन रु मृत्यु पर्यंत जो समय थाए से समय मध्य तार काम सब करने को पड़िबो। तार काम गुड़िक बहुत अधिक थाए किंतु समयटा कम थाए। आमर हृदयटा मजबूत एवं साहसी होता है। मफल्ड ड्रम्स मीन्स जितेबाला गोटे लोकर शुद्धिक्रिया समय ड्रम बाजी थाए कम साउंड हेबाई से ड्रम उपरे गोटे कपड़ा घोड़ाई दि जाए तो सेटा कहते मफल्ड ड्रम्स। आमर हृदय बहुत दृढ़ एवं साहसी होइथिले मध्य मृत्यु सबुबेले माने ड्रम बजेला भली बजे गोटे आमको वार्निंग दउछि जे दिने ना दिने मशाणी को जीवाकू पड़िबो। अर्थात मृत्यु जणई देउछि जे टाइम कमी कमी आसुछि, टाइम लिमिट होई आसुछि। लिमिटेड टाइम भितर जहा करिवार अछि करिवाकू पड़िबो। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb, driven cattle, be a hero in the strife. Bivouac means an arrangement for the soldiers to take rest. अर्थात जो सैन्य माने विश्राम नेबाई जो टेम्पोरारी आश्रयस्थली करा जाय थाए टेंट रे सेटा कहते विवॉक। एठारे पोएट लाइफ को मिलिटारी सोल्जर मानकर से रेस्टिंग प्लेस सहित कंपेयर करिसेंती। मिलिटारी सोल्जर मानकर से रेस्टिंग प्लेसटा जेमती टेम्पोरारी होता है लाइफ ही मध्य सेमिति टेम्पोरारी अटे। सेतिपई पोएट कहिसेंती गोटे हीरो भरी स्ट्रगल कर निज लाइफ रे जेते भी प्रॉब्लम आछि ताकू ओवरकम कर एनर्जेटिक भाबरे जेमती गोटे हीरो ब्रेवली एनर्जेटिक भाबरे फाइट करथाए तुमे मध्य से भली निज जीवन रे संघर्ष कर स्ट्रगल कर। एपरी जीवन संघर्ष करनी जेपरी गोटे पशु को जेपरी आदेश दिया जाय थाए सेपरी से करि थाए। कवि कहउचंती तमे सेपरी कर नहीं, गोटे हीरो भली निज लाइफ रे स्ट्रगल कर। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लेजेंट, लेट द डेड पास्ट ब्यूटी इट्स डेड, act in the living present, heart within and God overhead। ए स्टांजारे पोएट गोटे सुंदर कथा कहिसंती। यह एक वास्तव कथा जे आमे माने समस्ते आमर रंगीन भविष्य को नहीं कि स्वप्न देखती बहुत खुशी हुअंती जे भविष्य मो सहित या घटिबो एमती हबो। एवं आउ केतेक व्यक्ति अतीत रे घटी जाइतिबा घटना को एमिति दृढ़ भावरे मन भितर बांधी रखि थांती जे से माने आगो को बढ़ी पारंती नहीं। से अतीत रे तांको सहित कौन घटी जाइछि से कि भूल करि दैछंती सेटा सब बेले तांको मन रे थाए। एपरि मध्ये किछि व्यक्ति अछंती। तो कवि एठारे कहिसंती भविष्यतर रंगीन स्वप्न देखी निजर वर्तमान को नष्ट कर नहीं एवं अतीत रे जहा घटी जाइछि ताकू मन भितर रख नहीं, ताकू माटी तळे पोती दियो। बिकॉज पास्ट इज ऑलरेडी पास्ट, इट वोंट कम बैक हाउ मच इफोर्ट वी मे डू। आमे जेते चेष्टा कले मध्य घटी जाइथिबा अतीत को आमे फेरई पारिबा नहीं। तेणु करी कवि कहउचंती अतीत रे घटी जाइथिबा घटना को मनरू पोछि दियो। प्रेजेंट रे काम करी चलो। जेपरी तुम मानक मध्यरु जदि कोनोसी पिलार 10th बोर्ड एग्जाम रे किछि खराब रिजल्ट होइछि तो सेटा को नहीं मन दुख कर नहीं, आगो को केमिति भलो करिवो सेथिपई चेष्टा कर। कवि कहउचंती तुमे तुम कर्म रे मन दियो, तुम कर्म को भलो भाबरे कर, तुमर 100% दियो एवं भगवान तुम सहित अछंती। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time। एही स्टांजारे कवि कहउचंती जते ग्रेट मेन अछंती सेमानकर काम हमकू मने पकाई दे जे आमे मध्य आमर जीवन को गौरवमय करि परिबा। कवि एठारे कहउचंती जे आमे आम जीवन रे
एमिति ग्लोरियस एक्टिविटी करिबा ग्लोरियस डिड्स मीन्स गौरवमय काम करिबा जे आमर पद चिन्ह आमे छाड़ी दे जिबा अर्थात आमे मरीगला परे मध्य लोक माने आमको मने पकाइबे पार्थिव शरीर मरीजीव सत किंतु आमे जो काम करि जाइथिबा जो कर्तव्य करि जाइथिबा ताहा चिरदिन पई रहिथिबो ताहा परमानेंट अटे ता स्टेबल अटे ताकू लोक माने मने पकाइबे जेमिति आमे आज आइंस्टाइन अब्दुल कलाम न्यूटन सेमानंकु मने पकाउचे सेमाने मरी जाइथिले मध्य तांकर जो कंट्रीब्यूशन रहिछि सेटाकू आमे केही भूली पारु नाहंती Footprints that perhaps another sailing over lies sullen man, a forlorn and shipwrecked brother, sing shall take heart again. Forlorn means परित्यक्त shipwrecked means जार जहाज डूबी जिबा तो आमर जो कर्तव्यटा आमर जो ग्लोरियस एक्टिविटी रहिथिबो आमे छाड़ी दे जाइथिबा ताहा अन्य जनक पई प्रेरणा होई पारे का पई प्रेरणा होई पारे जीवन नौकारे समुद्र रे बुड़ी जाइथिबा जहाज अर्थात जो लोक निज जीवन रे भांगी पड़ी थाए निज जीवन रे बहुत किछि घटी जाई थाए एवं से मध्य तुमको देखि प्रेरणा पाई से आउ थरे निजको रीएस्टाब्लिश करि परिबो अर्थात निज जीवन रे पुणी थरे आगको उठिबा पई निज जीवन नौका को पुणी थरे बाहिबा पई से प्रेरणा पाइबो एवं से मध्य किछि ग्रेट थिंग्स लाइफ रे करि परिबो लेट अस देन बी ऑफ एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट स्टिल अचीविंग स्टिल परस्यूइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट कवि कहउछंती आस प्रस्तुत निजको प्रस्तुत कर एवं ए सब काम हृदयर सहित करि चालो एठारे कवि गुटे इंपोर्टेंट कथा कहउछंती जे लर्न टू हैव पेशेंस यंग जनरेशन मध्य देखा जाउची जे तांको पाखरे लैक ऑफ पेशेंस तांको पाखरे पेशेंस रो अभाव रहउची माने धैर्य शक्तिटा रहू नाही लोक माने बहुत शीघ्र अधैर्य होई पडुछंती कवि एठारे एही शिक्षा देउछंती ए स्टांजा रे जे धैर्य रख धैर्यर सहित काम करू तुमे माने जते बेले जीवन रे काम करूछ ए टेम्पररी पीरियड ऑफ लाइफ रे लिमिटेड टाइम भीतर जो काम भी करूछ तापई धैर्य रख एवं अपेक्षा कर ये पॉइंट तो सबू मैनकाइंड को पई सबू मनुष्यों को पई स्पेशली सेई मानक पई जो माने निज जीवन को मीनिंगलेस भाबंती माने एम्प्टी ड्रीम भाबंती एही पोएम थ्रू रे पोएट एया मेसेज दउछंती जे लाइफ रे टाइम को यूटिलाइज कर एवं आग को बढ़ी चल धैर्यर सहित काम कर एवं ग्लोरियस एक्टिविटी द्वारा निजर नाम को इमोर्टाल कर वीडियोटी जदि भल लगुची तेबे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब निश्चित करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग।